class we will be dealing with this topic of statistics. And okay, in today's class we will be dealing with this topic of statistics. और statistics में हम लोग तीन चीजों से की बात करते हैं. That is mainly we are concerned with mean, median and mode. किसका mean, median and mode किसका निकालेंगे भाई? कोई कुछ होना तो चाहिए. तो बेसिकली we deal with lot of data. वो जो नॉर्मली होता क्या है, why this branch of science is very important? Because normally what happens is while formulating any policy or while doing any survey, what happens, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो है एक पेन पेपर लेके और घर 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 जाके डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, दे ऑल वर्क फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन. जब ये सारा का सारा डेटा जाता है, किस टाइप का डेटा, जैसे कि अब मान लो एक डेटा अगर हम बनाएं कि आपके टाउनशिप में या सपोज जामनगर सिटी में हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर whose annual income is less than 5 lakh rupees per less than 5 lakh rupees whose annual income is less than 5 lakh rupees. So this इस type का जो data होता है, that is collected on a by the workers, that is collected by the ground workers. और इन ये जो data जब हमारे पास आता है तो हमारे पास raw form में आता है, उसको अपन process करते हैं. And after processing that data we try to extract various useful informations from that. We try to extract various useful information from it, and on the basis of that information we formulate our policies. उन इंफॉर्मेशंस के हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं. जैसा कि आपके फ्रेंड ने बोला कि द कोविड केसेस आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यस, उसमें वो तो ठीक है, वो एक डेटा हो गया. इस डेटा से सपोज करो देयर आर 4 लाख 48 लाख नहीं 50 लाख केसेस इन इंडिया एज ऑफ नाउ. तो इन 50 लाख केसेस में हम ये द यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट इज हाउ मेनी पर्सन्स, how many affected persons, how many active patients are above 35 years of age, how many active patients are above 60 years of age, or how many active patients are below 10 years of age. So this type of data that we can formulate is will give this type of data that we formulate will give me the very useful information from these raw data. एक हमारे पास raw data आया, उस raw data को जब हमने process किया तो हमें जो useful information मिली. अब processing के tool को, the tools for processing are mean, median and mode. And this branch of science that is dealing with the data is called statistics. This is a highly diversified branch. This is a highly diversified branch which has gathered importance in the near future, in past some years. जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी को इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसने पढ़ा होगा कि some रेटिंग एजेंसी हैज़ डिग्रेडेड इंडियाज रेटिंग. मूडीज बहुत ज़्यादा चलते हैं कि मूडीज हैव डिग्रेडेड इंडियाज रेटिंग एंड एवरीथिंग. तो ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, दे प्रिडिक्ट द ग्रोथ. हाउ दे प्रिडिक्ट द ग्रोथ? बेस्ड अपॉन द करंट सिनेरियो. Based upon the current scenario they predict the growth. कैसा current scenario? अब वो जाके, अब क्या आपने कभी भी मूडीज के किसी पर्सन को जामनगर में घूमते हुए देखा है? दे नेवर नो, दे माइट नॉट बी इवन नोइंग कि इंडिया में जामनगर नाम की कोई जगह भी है या नहीं है. But still they predict that India's rating is this. How they predict? Based upon the various raw data that we have. किस टाइप का raw data? हमारा industrial growth कितना रहा, हमारा agricultural growth कितना रहा, manufacturing में हमने कितना growth किया, कोल में माइनिंग में हमने कितना ग्रोथ किया. इस टाइप की चीजों को वो प्रोसेस करके दे हैव देयर ओन एनालाइजिंग थिंग्स, एंड आफ्टर एनालिसिस they rate each and every developing economy of the world. This is their job. They are being paid for that also.
अब इससे फायदा क्या होता है सर? अगर मान लो हमारे पास ऐसा होता है कि सपोज करो कि आवर इंडियाज रेटिंग इज से ट्रिपल ए, India's rating is triple A. That means India is a hub. India will be treated as a hub for foreign investment. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज आएंगी। एप्पल का प्रोडक्ट जो आज की डेट में आपको 60,000 का मिलता है, वही एप्पल का प्रोडक्ट कल आज से 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपको 20,000 में का मिलने लगेगा। वाई? बिकॉज अभी जो एप्पल का प्रोडक्ट है वो फॉरेन से मैन्युफैक्चर होके आता है, बट 2 साल के बाद वही एप्पल का प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगेगा। डेट इज वाई सो यू विल बी एबल टू गेट द प्रोडक्ट इजिली। तो क्यों क्यों इसलिए? क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग अच्छी की। जब रेटिंग अच्छी हुई तो एप्पल ने सोचा ओके फाइन, ठीक है, आई कैन गो एंड आई कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। सपोज करो माई इंस्टीट्यूट विच इज हेडक्वार्टर्ड इन कोटा, why it came to Jamnagar, which is some 1000 kilometers away from Kota? Because we studied and study के हिसाब से हमें ये पता चला कि yes we are having a scope here, that is why we came here. So इस टाइप की जो स्टडीज होती हैं, that is called, इस टाइप की स्टडीज को हमने एक स्पेशल ब्रांच ऑफ साइंस का नाम दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, वेयर इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज यूज्ड, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, ये तो था मसाला। अब हम खाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले खाने की बात करने में हमारे पास सबसे पहली चीज है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की हम जब बात करते हैं, so now there is a term which is called central tendency। ठीक है, किसी भी डेटा के, रॉ डेटा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने, किसी भी रॉ डेटा को अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, सो बेसिकली you will be representing the raw data with the help of 3 values, that is, and the values are mean, median and mode. You will represent your raw data with the help of 3 values, which are mean, median and mode, and this overall representation is called central tendency. These are called measures of central tendency। तो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके तीनों चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन मीन पढ़ेंगे, फिर अपन मीडियन पढ़ेंगे और फिर अपन मोड पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक सवाल जरूर रहता है, एक 4 नंबर का सवाल जरूर रहेगा। एक आपसे दे कैन आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस इन 1 मार्कर आल्सो एंड 2 मार्कर आल्सो, 3 मार्कर आल्सो। चैप्टर में ओवरऑल अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मैंने भी याद किया था, आप भी याद करोगे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस भी याद करेंगी, अगर अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, रटना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पे यू कांट गो बाय द थिंकिंग, यू कांट थिंक अनकन्वेंशनली एंड यू कांट गो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। सो आपको सोचना, आपको फॉर्मूलों का यूज तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कुछ कर नहीं सकते। तो करते चलो, लेट अस स्टार्ट द थिंग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। अरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसको मीन भी बोलते हैं। अरिथमेटिक मीन और मीन, व्हाट इज दिस मीन? अब ये मत बोलना हाउ मीन यू आर, ठीक है, तो इसको कोई इस तरीके से ना ले कि हाउ मीन यू आर। सो बेसिकली arithmetic mean of a set of observations, now this is a basic definition, arithmetic mean of a set of observations is obtained by dividing the sum of the observations by total number of observations। हमारे पास सपोज करो n ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज। अरिथमेटिक मीन को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं।
and it is obtained by हमारे पास x1 x2 x3 dot 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 up to xn. There are n observations and I have to calculate the mean of all these observations. So the simple formula for this will be arithmetic mean is equal to x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by n. Arithmetic mean is equal to x1 plus x2 plus x plus x3 dot 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 sorry up to xn divided by xn. ठीक है, that is it is equal to sum of all the observations divided by number of observations. ठीक है, now this is the case for a raw data. ये किसका केस है? रॉ डेटा का। रॉ डेटा मतलब मैंने आप लोगों से पूछा, मान लो यहाँ पे 30 लोग हैं, मैंने 30 से पूछा भाई आपकी एज कितनी कितनी है, किसी ने बोला 15 साल, किसी ने बोला 14 साल, किसी ने बोला 12 साल, किसी ने बोला 18 साल। सबकी एज को मैंने एक तरीके से एक टेबल के फॉर्म में लिख दिया, सबको मैंने ऐड कर दिया और टोटल 30 लोग थे, मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। जो भी मेरा आंसर आया वो that will be the my answer, that will be the my observation. But the problem with this method is अभी तो आपके पास छोटा सा डेटा था 30 लोगों का, मान लो 1 लाख लोगों का डेटा हो, तब क्या करोगे? अगर आप, मैं मानता हूं कि आज की डेट में जामनगर टाउन की पॉपुलेशन है से 5 लाख, तो अगर मेरे को 5 लाख लोगों का एवरेज एज निकालना है तो क्या मैं 5 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट करूंगा? तो इस केस के लिए तो अगर मान लो सपोज करो मैंने 5 लाख लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं 5 लाख उनका सम निकाल लिया, फिर मैंने उसको 5 लाख से डिवाइड कर दिया, तो द वैल्यू दैट आई विल बी गेटिंग, that will be called as the mean. And this type of data that I have just collected by visiting each and every person individually is called the raw data. अब मैं क्या करूंगा, लेकिन इस रॉ डेटा से मेरा काम चलेगा नहीं, क्योंकि रॉ डेटा से तो फिर प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रॉ डेटा तो भाई ठीक है, अगर सैंपल साइज बड़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट आई विल डू इज आई इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी रिफाइन द डेटा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। हाउ वी रिफाइन द डेटा, हम उनका क्लास बना लेते हैं कि 0 से 10 साल के बीच में, 10 साल से 15 साल के बीच में, 15 से 20 साल के बीच में, 20 से 25 साल के बीच में कितने लोग होंगे। What we will do is we just divide, arrange the people in different classes और उसके बाद जो है we collect the data। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम, तो अभी की चीजें, अभी का डिस्कशन नहीं समझ में आएगा। अब ये तो बात हो गई कि भाई हमारे पास जो रॉ डेटा था उसका अपन कैसे निकालेंगे, बट अब हम अगर अनग्रुप्ड की बात करते हैं, मान लो जैसे 30 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, 30 लोग हैं यहाँ पे। अब जब मैंने इनसे पूछा कि भाई किसकी किसकी कितनी कितनी एज है, तो मेरे को 5 लोगों ने बोला, एक सेकेंड, मेरे को किसी भी 5 लोगों ने बोला कि सर हमारी एज जो है वो 12 साल है। 8 लोगों ने बोला कि सर हमारी एज जो है वो 15 साल है। बहुत अच्छी बात है, 8 5 13। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 15 पर्सन्स, ठीक है। 5 लोगों ने बोला कि सर हमारी एज 12 साल है, 8 लोगों ने बोला कि सर हमारी एज 15 साल है, एक ने बोला कि भाई मैं तो जो हूँ मैं 32 साल का हूँ, और एक ने बोला कि मेरी जो एज है डेट इज 10 ईयर्स, ठीक है। अब अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे मैं 12 प्लस 5 15 प्लस 32 प्लस 10 नहीं करने वाला हूँ। मैं अगर 12 प्लस 15 प्लस 32 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 30 कर देता हूँ, इन दैट केस बेटा आई एम द बिगेस्ट फूल ऑफ द वर्ल्ड। Why I am biggest fool of the world? Because this 12 is occurring 5 times. वो तो शॉर्ट करने के लिए, इसको अच्छे से लिखने के लिए, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट आई हैव रिटन लाइक दिस, बट my 12 is occurring 5 times, my A15 is occurring 8 times, my 32 is occurring 1 times, and my 10 is occurring 1 time. So what if it will happen? It will be like this: 12 into 5 plus 15 into 8
प्लस 32 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, टोटल कितने लोग हो गए, 8 plus 5 is 13, 13 plus 1 is 14, 14 plus 1 is 15. अब ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी that will be the answer of your question. 180 plus 42 that is equal to 222 divided by 15. 15 साल से थोड़ा सा कम जो है 14 point something जो है इनकी एज आएगी, 14.8 I guess. So it will be something around 14.8 will be the average age. The average age will be here 14.8 years. ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर लो, परहैप्स द आंसर हैज टू बी दिस ओनली. नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं है, कुछ इतना ही होगा, 14 से ज्यादा और 15 से कम होगा, डेट इज श्योर. सो द आइडिया वाज, हमने क्या किया, हमने अच्छा अब 12 साल के लोग कितनी बार अपीयर हुए, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड एक्सआई. इसको अपन एक्सआई बोलते हैं, इसको अपन एफआई बोलते हैं. ठीक है, 12 साल के लोग कितने थे उसको अपन एफआई बोलते हैं, एंड सम ऑफ ऑल द एफआईज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. 12 साल के लोग कितनी बार आए उसको अपन एफआई बोलेंगे, और ये जो 12 है इसको अपन एक्सआई बोलेंगे. 12 साल के लोग 5 बार आए तो एफआई इज F1 बोल लो इसको, F1 will be equal to 5 and X1 will be equal to 12. Similarly, F1 will be equal to F2 will be equal to 8, X2 will be equal to 15, F3 will be equal to 1, X3 will be equal to 32, and the fourth one is X4 will be equal to 1, sorry, F4 will be equal to 1 and X4 will be equal to 10. And the formula for this will be summation of Xi Fi divided by Fi. And the sum will be, and the average will be summation of Xi Fi divided by Fi. So this is how you have to calculate the frequency you have to calculate the mean for an ungrouped frequency distribution. किसी ungrouped frequency distribution के केस में आप मीन इस तरीके से निकालेंगे. अब बात आती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आपसे कोई ये कह दे कि भाई 0 से लेके 10 से लेके 12 साल वाले, मेरे पास एक 10 साल वाला ये, 12 साल वाला ये, इस टाइप से अगर आपको कोई टेबल बना के दे दे, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड द ग्रुप्ड डेटा. इस टाइप के डेटा को हम लोग ग्रुप डेटा बोलते हैं, जहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर क्लास डिफाइंड रहता है कि 0 से 10 साल के बीच वाले इतने हैं, 10 से 15 साल के बीच वाले इतने हैं, 15 से 20 साल वाले इतने, 20 से 25 वाले इतने, और 25 से 30 वाले इतने, एंड अबव 30 वाले इतने हैं. सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा. अब ग्रुप्ड डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, आपको ग्रुप डेटा का जब आपको मीन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट द क्लास मार्क फॉर ईच क्लास. अब क्लास मार्क क्या होता है सर? क्लास मार्क इज डिफाइंड एज द सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. The class mark is defined as the sum of lower limit plus upper limit divided by 2. ठीक है, तो this is called, और इस क्लास मार्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं xi से. ठीक है, इस क्लास मार्क को अपन रिप्रेजेंट करते हैं xi से. yes, it is xi only. उसके बाद see, frequency is number of times that particular xi is repeating. frequency को तो पहचानना बहुत आसान है कि it is the number of times the particular thing is repeating. ठीक है. So what I was telling that this is the average of lower limit and the upper limit is called the xi, और वो xi कितनी बार रिपीट हो रहा है, that is called the frequency. अब मान लो 0 से 10 साल के बीच में सपोज करो
हमने एक ग्रुप बनाया, हमने एक डेटा लिया 50 लोगों का। अब ये 50 लोगों में 40 लोग ऐसे हैं जिनकी एज है 0 साल से बड़ी है और 10 साल से छोटी है। अब हम उसको ऐसे लिखेंगे, मान लो इस 40 में से 9 साल वाले 5 है, 8 साल वाले से 8 साल वाले 10 हैं, इस टाइप से है। तो दिस इज अगेन अ वेरी कम्बरसम थिंग। सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं ये बोलूंगा कि 0 से 10 वाले टोटल 40 लोग हैं, ठीक है। अब इसका मैं एवरेज ले लूंगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। सो 5 साल वाले टोटल 40 हैं, ऐसा मैं ऑन एन एवरेज कह सकता हूं। 5 साल वाले 40 हैं, ऐसा मैं ऑन एन एवरेज कह सकता हूं, ठीक है। So this will be the again this will be the xi and this will be my fi, ठीक है। अब xi मिल गया, fi मिल गया, वही वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। एक बात यहाँ पे याद रखना, एक टिप बताता हूँ आप लोगों को। नॉर्मली इस टॉपिक में क्या होता है, वी टेंड टू डू सम मिस्टेक्स, we tend to do mistakes. Unfortunately we don't have any check, we don't have any check for this product। यहाँ अगर गलती हो गई तो बेटा फिर गई भैंस पानी में, फिर तो आपको एक एक चीज को चेक करना पड़ेगा। बट फॉर दिस वी हैव ए चेक। क्या चेक है सर? अगर मान लो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 300 सपोज करो, ठीक है। आपने समेशन xi fi डिवाइडेड बाय समेशन fi कर रहे हो। अब यहाँ पे बाय एनी वे आपको समेशन fi मिल रहा है 250। आपने कुछ गलती की होगी, क्या गलती की होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये वैल्यू मिल रही है 250। इसका मतलब जानते हो दया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ गलती की है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 300 था ना। हाँ भाई,